Okay, students, a very good morning and welcome back to class 12th physics lecture. And we were going ahead with the topic of ray optics. Ray optics का हालांकि theoretical part खत्म हो चुका है, but still before we wind up with the ray optics, we would prefer कि आज थोड़े question और कर लेते हैं, then we'll wind up with the ray optics. Okay, so here we go with question number 1. Okay, बड़ा ध्यान देना क्योंकि आज कुछ questions मजेदार हैं and there are some different things that I am going to tell you today again. क्योंकि हर problem कुछ नया सिखाता है, पुरानी चीजों में एक नया तड़का लगाता है. ठीक है? So let's go ahead with question number 1. So good morning once again to all of you. The question says, a point object O is placed at the center of a glass sphere of radius 6 centimeters and the refractive index 1.5. Distance of virtual image from surface of the sphere is. So I have a glass sphere, somewhat like this. I have a glass sphere somewhat like this, whose radius is 6 centimeters. This radius जो है वो 6 centimeter है. Okay. And a point object O is placed at the center of the sphere. ठीक है? It is asking you to find the distance of the virtual image from the surface of the sphere. Anybody who can go ahead with this question or can hint कि what should I use over here? कि मैं इस question में आगे बढ़ूँ. What should be the expression that I should use to go ahead with this question? क्योंकि क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए, बड़ा ही सिंपल. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बाहर कुछ नहीं दिया है, दैट मींस बाहर आउटसाइड इट इज एयर. ओके, एंड हियर यू हैव द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड. दिस इज द ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड इन द ग्लास स्फीयर. कैन एनीबॉडी ऑफ यू सजेस्ट कि व्हाट शुड बी द स्टेप दैट आई शुड फॉलो फॉर दिस प्रोसेस टू कंटिन्यू? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इजी प्रोसेस मेरे लिए क्या हो सकता है? एनीबॉडी हु कैन हेल्प मी सजेस्ट. लेंस फॉर्मूला. आर यू श्योर अर्निश लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे कि बेटा कुछ और यूज करेंगे? अरे लेंस फॉर्मूला की कुछ और? अदर्स आल्सो काइंडली पार्टिसिपेट एंड गिव योर रिस्पांस. जितनी जल्दी रिस्पांस दोगे उतना मजा आएगा, उतनी जल्दी हम प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ेंगे. लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ओके, लेंस मेकर्स फॉर्मूला का बेटा यहां पे डू वी एक्चुअली हैव यूज? गौर से सोचो. लेंस मेकर्स फॉर्मूला, एवरीबॉडी इज सेइंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बट कैन वी यूज द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड सरफेस? कैन वी यूज द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड सरफेस? यूज कर सकते हैं, हालांकि बढ़ के आगे वहीं पे आएंगे जहां पे आप कह रहे हैं. So if I use refraction at the curved surface, directly I go ahead with the expression that is mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r. Perfect. बराबर है? Now, if the object is placed over here, ठीक है? If the object is placed over here, where do you think would the image be formed? ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना. ऑब्जेक्ट कहां पे रखा बेटा? सेंटर पे रखा. ऑब्जेक्ट O is placed at the center. That means if I have a ray of light going over here, ठीक है, ray of light is going over here, तो ये इंटरफेस पे टकराएगा. ये इंटरफेस पे तुम्हें क्या बनाना है? नॉर्मल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ नॉर्मल. तो नॉर्मल बना दो. तो बेटा नॉर्मल फॉर अ कर्व्ड सरफेस always passes through the center. बराबर? It always passes through the center. तो भैया नॉर्मल तुम कैसा बनाओगे? ऐसा बनाओगे. बराबर? So quickly state the values of angle of incidence and angle of refraction for this interface. जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि प्रॉब्लम आज और भी करना है, अच्छे करने. What should be the value of angle of incidence and angle of refraction at this interface? जहां पे ray of light जा रही है. नॉर्मल, बट ऑफ कोर्स ऑलवेज सेंटर से पास होता है कर्व के, तो नॉर्मल तो भाई यही बनेगा. तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? क्विक, वेरी गुड. अनीश, वेदांत, ऋषि, ग्रेट. That is, angle of incidence, angle of refraction will be 0, and this ray of light would pass undeviated. बराबर? ये undeviated pass होगी. That means the image would be formed somewhere at infinity.
दैट मींस इमेज वुड बी फॉर्म समवेयर एट इंफिनिटी। यस, बराबर। तो चलो वैल्यूज पुट करना शुरू करो। तो आई एम ओवर हियर, ठीक है, इमेज कहां बनेगी भाई? इंफिनिटी पे। सही है ना? यस और नो? क्विक, जल्दी से रिस्पॉन्स करो, यहाँ पे क्या आना चाहिए? ठीक है, तो इमेज कहीं जाके बन रही है, चेक करते हैं। तो आई प्लेस द वैल्यूज, म्यू टू किधर है? एयर पे, तो 1 बाय v माइनस μ1 किधर है? ग्लास में, ऑब्जेक्ट इज इन द ग्लास, माइनस 1.5 बाय u। u कितना है बेटा? रेडियस हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू यू 6 सेंटीमीटर्स, 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो आई टेक इट एज -6 which will be equals to μ2 minus μ1। μ2 minus μ1 किधर है? μ2 कितना है? 1 minus μ1 is 1.5 divided by r which is again -6। Perfect। तो I have now 1 by v plus minus minus plus 1.5 by 16, तो ये लिख सकता हूँ 15 by 60। You know मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, इसलिए ऐसे करता हूँ, माइनस 0.5 upon -6, फिर से माइनस माइनस उड़ा दें, ठीक है। 0.5 upon 6 I can write as 5 by 60, ठीक है। तो this becomes 5 3s are 5 12s are 3 1s are 3 4s। Similarly this will become 5 1s are 5 12s। So I am left with 1 by v plus 1 by 4 is equals to 1 by 12. So this will be 1 by v is equals to 1 by 12 minus 1 by 4. LCM कितना आ गया? 12. So I am left with 1 minus 3 which is minus 2 by 12 or 1 by 6 minus 1 by 6. Therefore v is equals to minus 6 centimeters. बराबर? बराबर? v is equals to minus 6 centimeters. ये क्लियर हो गया, ठीक है। -6 आ रहा है, इसका मतलब बेटा इमेज किधर बन रही है? सरफेस से, कर्व सरफेस से -6 इधर। दैट मींस द इमेज इज फॉर्म्ड बैक एट द सेंटर। दैट मींस द इमेज इज फॉर्म्ड बैक एट द सेंटर। इज दिस पार्ट क्लियर? क्वेश्चन इजी था, कोई बहुत टिपिकल नहीं था, बट आई वांटेड यू टू एनालाइज फ्यू थिंग्स इन द क्वेश्चन दैट आई विल मेक यू एनालाइज राइट नाउ। दैट आई विल मेक यू एनालाइज राइट नाउ। जल्दी से बताओ, ये पोर्शन क्लियर हुआ? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल? हरी अप प्लीज। क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को, ऑप्शन इज सी, यस ऑप्शन इज सी, बट ऑफ कोर्स ऑप्शन इज सी 6 सेंटीमीटर्स ना। बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे तो सॉल्व कर लिया, ये हमने वैल्यूज पुट करी, ये किया वो किया, बट देयर शुड बी अदर वे आउट आल्सो। इफ यू एनालाइज दिस क्वेश्चन इन दिस वे, इफ यू एनालाइज दिस क्वेश्चन इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, ठीक है, जो हमने यहां से शुरू किया था फिगर से, जो हमने फिगर से ही शुरू किया कि दिस रे ऑफ लाइट गोज ओवर हियर एंड बट ऑफ कोर्स इट वुड पास अनडेविएटेड। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इधर ही बनेगा। सो दिस रे ऑफ लाइट, और इफ यू टेक अनदर रेज आल्सो, अगर यहां से और भी रेज लेते हो, हमने तो एक लिया, अगर आप इसमें से और रेज लेते हैं, इफ यू टेक मोर नंबर ऑफ रेज, दे all will pass undeviated, और अगर बेटा ये सर वी कैन डू इट बाय एक्सटेंशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, यस वी आर डूइंग इट द सेम वे, प्रियांशु वी आर डूइंग इट द सेम वे। देख ले बेटा, सो नाउ व्हाट विल हैपन, एज दीस ऑल रेज, सबके लिए नॉर्मल किधर होगा? विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर, सबके लिए नॉर्मल विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर। दैट मींस इफ यू सी द रिफ्रैक्टेड रे व्हिच गोस अनडेविएटेड, और ये फैल रही है, तो दैट मींस where would the image be appearing to be formed? पीछे रिप्रोड्यूस करोगे तो इमेज कहां फॉर्म होगी? इट विल बी फॉर्म्ड बैक एट सी। तो ये इतना न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने की जगह अगर तुम फिगर बनाओगे, यू विल एक्सटेंड द रिफ्रैक्टेड रे और पीछे लेके जाओगे, तो इट इज वेरी मच क्लियर दैट द वर्चुअल इमेज मतलब कैसे फॉर्म होगी? प्रोड्यूसिंग them backward। तो जितनी रिफ्रैक्टेड रे है, इफ यू प्रोड्यूस them backward, you will get the image, और वो सारी की सारी इमेज किधर बनेगी? But of course सेंटर। Is this part very much clear? So Priyanshu beta, exactly that is what I wanted to tell you कि न्यूमेरिकली भी कर सकते हो और इसको फिगर देख के तुम ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो इस क्वेश्चन। तो वापस कहां पे बनेगी? सी। Is it clear to all the students? Yes, please hurry up. Is it clear to all the students कि हम theoretically और calculations लगा के कैसे कर सकते हैं? Okay, fine. चलो let's go ahead with question number 2. Question number 2 says a beaker contains water up to height h1
and kerosene above water up to height H2. Okay. Question says a beaker contains water up to height H1. A beaker contains water up to height H1 and kerosene up to height H2. If refractive index of water is mu1 and refractive index of kerosene is mu2, then find the apparent shift, in the bottom of beaker as observed from outside. Apparent shift in the bottom of the beaker as observed from outside. I think I'll help you out with the figure also. So this is a beaker which is having water up to height H1. ठीक है, water है, refractive index is mu1. Then you have kerosene. Up to height H2. ये height H2 तक है kerosene with refractive index mu2. और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, it is asking you to find the apparent shift in the bottom of the beaker. तो bottom of the beaker जो है ये bottom, ये point यहाँ पे मान लो कोई point O. तो ये पूछ रहा what is the apparent shift in the bottom of the beaker as viewed from outside. तो अगर ऊपर से कोई देख रहा, if an observer is standing outside this all particular portion, तो इस particular observer को ये ऑब्जेक्ट या बॉटम ऑफ द फ्लास्क कितना शिफ्ट ऊपर दिखेगा, ऊपर तो दिखेगा, दैट इज फॉर श्योर कि ऊपर तो दिखेगा. ठीक है. एंड व्हेन आई वाज टीचिंग यू apparent and real depth, I even told you if the observer is in the rarer medium as compared to the denser medium, तो जो ऑब्जेक्ट पोजीशन होती है ऊपर शिफ्ट होती है. If the observer is in the denser medium and is observing the rarer medium, तो पोजीशन किधर शिफ्ट होती है, दूर शिफ्ट होती है. इस केस में पास होगा, दूसरे केस में दूर होगा. तो कितना पास होगा? अरे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल. फॉर वाटर अज्यूम करो केरोसिन नहीं है, तो जब वाटर होगा तो शिफ्ट कितना होगा? When water is there, then shift is S1. कितना होता है? फॉर्मूला शिफ्ट का क्या था? What is the expression for shift? Is equals to T1 minus 1 by mu. बराबर? तो शिफ्ट ड्यू टू S1, ड्यू टू वाटर कितना होगा? T. थिकनेस कितना है? H1. by इसका हाइट इसका थिकनेस हो जाएगा H1. 1 minus 1 by mu1. Yes. ये उसको शिफ्ट कर देगा. इमेज यहां पे बन जाएगी. कहां बन जाएगी? सपोज O डैश पे बन जाती है. फर्स्ट इमेज या O1 ले लेते हैं. O1 पे आ गया. अब O1 इज द न्यू शिफ्ट. O1 इज द न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो एयर से देखते हैं. जब केरोसिन नहीं था तो O1 पे आ गया. अब केरोसिन फिल कर दिया. तो अब केरोसिन जब फिल करोगे तो बेटा वापस O1 शिफ्ट होगा ना, वापस O1 की पोजीशन शिफ्ट होगी, which will be S2. वो कितना होगा? That will again be H2 1 minus 1 by mu2. Yes. तो भाई टोटल शिफ्ट कितनी आ गई? डायरेक्ट क्वेश्चन. तो टोटल शिफ्ट कितनी आ गई? टोटल शिफ्ट S will be S1 plus F2. So net shift S would be H1 into 1 minus 1 by mu1 plus H2
into 1 minus 1 by mu 2. If here there was a third medium also, if here there was a third medium also, तो shift क्या होती? You might have also added S3. You might have also added S3. It's quite a simple question, but ये type के question, generalized question आपके पेपर में आ जाते हैं, both in JEE Mains as well as in your board. Is this concept and this question clear to all the students? Is this question very much clear to all of you? हाँ भाई, if this is clear, then we'll move ahead with another good question. Clear है? Easy question तक है, easy भी था और direct भी था, ठीक है? तो अब आ जाते हैं कुछ अच्छे बढ़िया मजेदार क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? कुछ बढ़िया और मजेदार क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे. And for this question, I'll give you some time. For this particular question, I'll give you some time. जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है? देखो, a convex lens of focal length 25 centimeters. बेटा नो नीड टू सॉल्व अर्निश, अभी सॉल्व क्यों करना है उस क्वेश्चन को? वो वही दैट विल बी द आंसर. जो तुम्हारा क्वेश्चन आया था, दिस वाज अ जेईई मेंस क्वेश्चन, उसमें ऑप्शंस दिए थे एंड दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? क्योंकि इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने सारे ऑप्शंस आपको डिस्प्ले नहीं किए. A convex lens of focal length 25 centimeters. A convex lens of focal length 25 centimeters and a concave lens of focal length 20 centimeters are placed coaxially separated by d distance, ठीक है? d centimeters, separated by d centimeters. If power of combination is 0, if power of combination is 0, अगर power of combination 0 है, then ds is 0, then 30, 15 and 5. चलो भाई, this is again a question of JEE Mains का question है ये. Hurry up, I'll give you time for this question. A convex lens of focal length 25 centimeters and a concave lens of focal length 20 centimeters are placed coaxially separated by d centimeters. If power of combination is 0, then ds. Yes, please. Hurry up. करो भाई, करो. I'll give you some time. You may please try this question out because it's a good question, I believe. Okay, Anish has come up first with the answer. ठीक है, चेक करते हैं Anish. Anish is the first one to come up with the answer. बाकी लोग भी जल्दी अटेम्प्ट करके बताओ भाई. Anish, is it a fluke or you tried it out? ये फ्लूक मारा है कि ट्राई किया है? Others also please respond. Sorry, great. What is the concept that you have applied over here? Please tell the concept that you applied over here. And others also, I'm waiting for your response. Jaldi. Very good. Priyanshu has also come up with the answer D as 5 centimeters. I'm waiting for others. Combination of lenses separated by distance. Okay.
So you applied some expression. What is that expression that you have applied? What is that expression that you have applied? P1 plus P2 minus distance of P1 P2. Okay, ठीक है. Okay, चलो. Okay, but I am going to do it without expression. ठीक है. I am going to try it out without expression. Let's see how it goes without expression. ठीक है. ना चलो. I'll solve it for you. No doubt, at least that is perfect. अगर आप उसके साथ कर रहे हो बेटा. Now I have an object placed over here. I have a combination of a convex lens, ठीक है, and a concave lens, and a concave lens, ठीक है. This is a combination, and distance of separation between them is d. Distance of separation between them is d. Now the concept, the question says that the power of combination is 0. The power of combination is 0. Power of combination is 0 मतलब कि जो light ray आ रही थी वो जैसी आ रही थी वैसी ही जाएगी. That means it is going undeviated from its path. So suppose there was a ray of light which is coming parallel. There was a ray of light which is coming parallel. Okay. If suppose this lens was not here. ठीक है. This lens was not here. तो बेटा ये ray किधर मीट करती? ये ray किधर मीट करती? It would have met at the focus. It would have met at the focus of the convex lens. बराबर. That means ये distance कितनी है? 25 सेंटीमीटर. कितनी है ना? 25 सेंटीमीटर. Okay. But we don't want the converging beam. हमको कैसी चाहिए? हमको ऐसी situation चाहिए कि if a concave lens is placed, जो कि यहाँ रखा जाएगा, ठीक है, कहीं इसके साथ में separated by a distance of d. Separated by a distance of d. ध्यान से सुनना. Separated by a distance of d. Okay. So at that case, these rays after coming to concave lens should go parallel. भाई इसी को तो बोलेंगे ना. तो जैसी ray आई वैसी ही चलेगी. Then only we will say that there is no deviation in the light ray and the converging or diverging. That is the total power. That is the total power of the combination is 0. तभी तो बोलोगे ना कि total power of the combination is 0. Yes? अच्छा. अब ध्यान से देखो. Concave lens के लिए, if the virtual object is over here, ये O, I मान लेते हैं I, या O इधर से लिखा तो इसको O dash मान लेते हैं. If O dash is the virtual object, then the rays will go parallel only if this is the focal length of the concave lens. If this is the focal point of the concave lens. क्यों भैया focus point for a concave and a convex lens क्या होता था? वो point जहां से ray of light कैसी appear होती है? Parallel. Convex case में कि अगर parallel light को meet करती है या अगर object रखा है और इससे convex lens मिले तो they become parallel. Are you getting? Convex lens के केस में होता है, concave lens के केस में क्या होता है? They appear to become. Yes, ठीक है. So what is happening? That means this particular distance, ये इसकी focal length होगी ना, इसका focus point होगा ना O dash. This is how much? 20 centimeter. बराबर. So now if you see, this distance is 25 centimeters. This distance is 20 centimeters. So what distance is left? 25 minus 20, which is 5 centimeters. Which is 5 centimeters. Are you getting this thing? तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी लगा सकते हो. What Anish is telling, P1 plus P2 minus twice of dP1 minus dP1 P2. ठीक है. अगर पावर सेम है तो वहां ट्वाइस हो जाएगा. सेम नहीं है तो minus dP1 into P2. That is perfect. But if you want, you can do it this way also. Is this part clear? समझ में आया? ये तरीका समझ में आया? This is a very generalized theoretical process. Yes students, is it clear? आदमीश बेटा ये प्रोसेस समझ में आया? प्रियांशु समझ में आया ये प्रोसेस? ठीक है ना? तो अपन इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं instead of going through that particular process. Okay? चलो, let's move ahead with another question.
That's very good that people are able to solve these questions quickly. But मेरे को सारे के सारे बच्चों का response नहीं आ रहा है. I am waiting for response of other students also, so that everybody can respond quickly on these questions. अगर करोगे तो थोड़ा और मजा आएगा. Okay. Okay. Now the question says, an object 2.4 meters in front of a lens focuses a sharp image of a film. An object 2.4 meters in front of a lens focuses a sharp image on a film 12 centimeters behind it. Behind it means behind the lens. A glass slab 1 centimeter thick. A glass slab 1 centimeter thick and of refractive index 1.5 is placed between lens and film. Between lens and film. At what distance should object be shifted? At what distance should the object be shifted to be in sharp focus on film? To be in sharp focus on film. To be in sharp focus on film. ठीक है, options here are 7.2 meters. Then you have 2.4 meters. Others, I would request you to please continue solving it. 3.2 meters and D is 5.6 meters. ठीक है भाई, चलो अटेम्प्ट करो और ऐसे क्वेश्चंस का पहला प्रोसीजर सेम होता है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल. दैट इज मेक द फिगर. जितने केसेस दिख रहे हैं, जैसे केस दिख रहे हैं, उनके लिए फिगर बनाओ. द क्वेश्चन बिकम्स इजी फॉर यू. ट्राई दैट, कोशिश करो. This is a very good question. And question is very straight. An object 2.4 meters in front of a lens focuses a sharp image on a film 12 centimeters. 12 centimeters मार्क करना, डिस्टेंस ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है. 12 centimeters behind the lens. A glass slab 1 centimeter thick is placed, of refractive index 1.5 is placed between lens and film. Now, at what distance should the object be shifted to be in sharp focus on film? To be in sharp focus on film. ठीक है? So I'll also try to make out the figure. पहले फिगर बना लेते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे 3 केस हैं, 2 केस हैं. एक पहला केस है कि भाई ऑब्जेक्ट is kept 2.4 meters behind the lens. ठीक है ना? एक केस ये है, ये ऐसा केस है कि this is a lens. Okay, and here is the object O, which is at a distance of 2.4 meters, that is 240 centimeters, and the image is formed over here, I, which is formed at 12 centimeters. ठीक है?
डोंट गो ऑन टू स्केलिंग ऑफ द फिगर। 12 सेंटीमीटर, ये इनिशियल केस है, ये इनिशियल केस है। अभी फाइनल केस भी देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके बीच में ग्लास स्लैब तो रखा है, ग्लास स्लैब तो रखा है क्या, ये अगर यहां पे रखा है, ये लेंस है, ये ग्लास स्लैब रखा है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि भाई देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, इमेज आई जो है, इमेज आई जो है ग्लास स्लैब रखने के बाद भी यहीं पे बन रही है, इमेज आई जो है वो ग्लास स्लैब रखने के बाद भी यहीं पे बन रही है, समझना, ग्लास स्लैब रखने के बाद भी यहीं पे, तो बट ऑफ कोर्स तुमको ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं पीछे ओ डैश पे शिफ्ट करना पड़ेगा भाई, पीछे ओ डैश पे ही शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी इमेज आई यहां पे बनेगी भाई, बिकॉज़ यू कैन सी फॉर ग्लास स्लैब इज देयर, तो डेविएशन होगा और इमेज और दब के बनेगी, दैट मींस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड मोर फार अवे। तो ये पूछ रहा है कि ओ डैश कितना होगा, इमेज को यहां पे, सॉरी ऑब्जेक्ट को नया पोजीशन कितना होगा, इट इज आस्किंग यू द न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। This is the question. I have clarified by making a figure. I have clarified by making a figure. ये आप समझ सकते हैं आप आसानी से। 7.2 मीटर कौन नीचे कर देता हूँ, ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, या ओ डैश, ये 7.2 मीटर। चलो, this is a very simple plain question. ध्यान से देख लो, वेरी 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 सिंपल एंड प्लेन क्वेश्चन, देखने की कोशिश करो। यस प्लीज, यस प्लीज, ट्राई इट आउट। क्विक, see, one data what we can obtain from the very first figure is that we can find out the focal length of the lens. One data what we can do is we can find out the focal length of the lens. आराम से निकाल सकते हैं focal length of the lens। निकाल लो भैया focal length of the lens। तो focal length of the lens निकाल लो, यहाँ से क्या आएगी, 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f। ठीक है, तो 1 by v कितना है, 1 by 12 माइनस 1 by u कितना है, माइनस 240, माइनस 240 इज इक्वल्स टू 1 by f। तो 1 by 12 प्लस 1 by 240 इज इक्वल्स टू 1 by f। ठीक है, 240 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 240 और 12 का 12 दूनी 24 20, 12 एक कम 20 और 20, तो ये आ जाएगा 240, एलसीएम कितना आ जाएगा अपने को 240। ठीक है, एलसीएम आ गया अपना 2, ये हो गया 20 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 by f। तो बेटा f कितना आ गया, f आ गया हमारा 240 अपॉन 21 सेंटीमीटर, 240 अपॉन 21 सेंटीमीटर। ओके, अमन हैज कम अप विद द आंसर 3.2 मीटर। चेक कर लेते हैं बेटा, नो इश्यूज। तो पहला ऑप्शन को हमें एक चीज मिल गई, दैट वी गॉट द फोकल लेंथ एज 240 by 21 सेंटीमीटर। तो ये आ गई भाई फोकल लेंथ, f यहां लिख लो, which is 240 by 21 centimeters। ओके, ये डेटा मिल गया है। अगला पार्ट क्या कर सकते हैं, अगला पार्ट करने के लिए खेल खेलना पड़ेगा, अगला पार्ट करने के लिए खेल खेलना पड़ेगा। क्या खेल खेलना पड़ेगा, क्या खेल खेलना पड़ेगा, देखो ध्यान से। इफ सपोज देखो, ये तो हमको केस क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट शिफ्ट किया तो इमेज यहां कहीं बन रही है, बट इफ सपोज द ग्लास स्लैब वाज नॉट हियर, assume if suppose the glass slab was not here, ठीक है, और सेम केस के लिए केवल लेंस होता, सेम केस के लिए, दैट मींस ऑब्जेक्ट वाज एट o dash, object was at o dash, lens was in the same position, lens was in the same position, lens was in the same position। ठीक है, तो भैया इमेज का यस शिफ्ट ड्यू टू स्लैब, अब हम क्या निकालेंगे, शिफ्ट ड्यू टू स्लैब, बट वो निकालने के लिए बेटा समझना पड़ेगा, वो निकालने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर ऑब्जेक्ट o डैश पे है, ऑब्जेक्ट अगर o डैश पे है, यहां पे इसकी पोजीशन पे होता, इस पोजीशन पे, और स्लैब नहीं होता, स्लैब नहीं होता, तो इमेज कहीं और बनती, इमेज वुड हैव फॉर्म समवेयर ओवर हियर, इमेज कहीं और i डैश पे बनती।
इमेज कहीं और आई डैश पे बनती। जब तुमने ग्लास स्लैब प्लेस लिया तो वो शिफ्ट होके आई पे चली गई, तब वो शिफ्ट होके आई पे आएगी, आएगी ना, आएगी ना, बराबर, शिफ्ट होके आई पे आएगी। यस, व्हाट विल बी द शिफ्ट थ्रू द ग्लास स्लैब, ध्यान से पढ़ो, व्हाट विल बी द शिफ्ट ड्यू टू द ग्लास स्लैब, आई आई डैश होगा ना, आई आई डैश, ये होगा ना शिफ्ट टू द ग्लास स्लैब। तो शिफ्ट ड्यू टू द ग्लास स्लैब कितना आएगा, t into 1 minus 1 by mu, which is equals to thickness कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 minus 1 upon mu कितना है 1.5, ठीक है, तो ये आ गया 1 into 1.5 minus 1 divided by 1.5, ये कितना आ गया 1.5 minus 1 है 0.5 divided by 1.5, ये आ गया कितना 1 by 3 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट कितना आ गया 1 by 3 सेंटीमीटर, कितना शिफ्ट आ गया 1 by 3 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग दिस थिंग, शिफ्ट कितना आ गया 1 by 3 सेंटीमीटर। दैट मींस जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी भाई, ये आ गया 1 by 3 सेंटीमीटर, 1 by 3 सेंटीमीटर। तो बेटा इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस ये हो जाएगी व्हिच विल बी 12 minus 1 by 3, 12 minus 1 by 3 हो जाएगी ना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इमेज डिस्टेंस दैट इज 12 minus 1 by 3, 12 minus 1 by 3 कितना आएगा 35 by 3, 12 minus 1 by 3, गौर से देखो 12 minus 1 by 3 will be 13 by 3 centimeters, sorry 35 by 3 centimeters. That means for this case image distance I, image distance B कितना हो जाएगा 35 by 3 centimeters पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ही निकालना है हमको, फोकल लेंथ ऑलरेडी मालूम है 240 by 21, 240 by 21, अच्छा ये और सॉल्व हो सकता है, 240 by 21 यहां कर लेते हैं, 3 7 are 21, 3 8 are 24, 0, 80 by 7 centimeters, 80 by 7 centimeters. Yes, so now I simply go ahead and solve it and get the value of u. So 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. 1 by v that is 35 by 3 minus 1 by u is equals to 1 by f, तो 7 by 80, ठीक है। तो 1 by u ये हो गया 3 by 35 minus 1 by u is equals to 7 by 80, तो 1 by u is equals to 3 by 35 minus 7 by 80, okay, so 1 by u. Please solve it, please solve this portion and get the value of u. Hurry up, solve this portion and get the value of u. जल्दी से सॉल्व करो और u की वैल्यू निकालो, जल्दी से सॉल्व करके u की वैल्यू निकालो, क्विक 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 क्विक। ये सॉल्व वाला पार्ट जल्दी से करके दीजिए एंड गिव मी द आंसर, व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग। Hurry up, hurry up, hurry up. Very good, Arvish. So u is minus 560 centimeter. Solve करके आ गया है, तो u what I get is u is equals to minus 560 centimeters or u is equals to minus 5.6 meters. So correct answer is option D. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो बेटा देख लो, इस टाइप का कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो दिमाग क्या लगाओगे, खेल क्या लगाओगे, वो ये लगाओगे, क्या करोगे, तुरंत के तुरंत पहला केस लिया, पहला केस लेके हमेशा उसका इनिशियल जो भी वैल्यू निकाल सकते हो, इनिशियल वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, तो फोकल लेंथ निकाल लिया हमने, सबसे पहला काम कर लिया। अगला काम क्या कर सकते थे हम कि हमने देखा कि फाइनल जो आ रहा है वो ये सिचुएशन गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, ठीक है ना। अमन डेड 12 plus 1 by 3, बेटा बट अमन समझ में आ गया डिफरेंस क्या है, अमन नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस। शिफ्ट किधर से किधर होगी, बट ऑफ कोर्स देखो बेटा किधर है, देखो एयर में था ना ऑब्जेक्ट और तुम डेंसर में देख रहे हो, अगर कंफ्यूजन हो रही तो भी देख लो, एयर में था तुम डेंसर में देख रहे हो तो शिफ्ट इधर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब जब स्लैब लगाओगे तो शिफ्ट बाहर है। अमन इज इट क्लियर नाउ? अमन अभी बेटा क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी एक चीज देखिए, जब भी कभी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है
what you are going to proceed is always remember कि proceeding के लिए पहला initial part ले लोगे कि initially कैसे निकाला है, final क्या situation given है, और जो बीच में apply कर रहा है अगर वो system ना होता तो क्या होता और उसकी वजह से क्या होगा. Okay, चलो, then we'll move ahead with one more good question. We'll move ahead with one more good question और solve करेंगे और मजा लेंगे, ठीक है ना. ये तो भी आज होके वाले क्वेश्चन चल रहे थे, अब थोड़ा सा एक भारी उठाता है, थोड़ा सा एक भार उठाएंगे. वो भार रहा ये. Okay. A quarter cylinder of radius capital R has mu equals to 1.5. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता नहीं हूं क्योंकि काफी टाइम लगेगा. यू राइट डाउन, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग. अ क्वार्टर सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. A quarter cylinder of radius capital R has refractive index 1.5 is placed on two sides of a table. Is placed on two sides of a table. A point object P is kept at a distance of mr. A point object P is kept at a distance of mr. If the value of m for which ray will emerge parallel, if the value of m for which the ray will emerge parallel is x by 3, if the value of m for which ray will emerge parallel is x by 3, then find x. Then find x. Then find x. Then find x. ठीक है? This is 0.01 centimeters. This is 0.01 centimeters. ये JEE एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है? I hope everybody wrote the question. Everybody has written the question. Yes, has everyone written the question? जल्दी से बता दो भाई. Has everybody written the question? लिख लिया है जो डिक्टेट किया? Okay, I'll repeat once again. A quarter cylinder of radius capital R has mu equals to 1.5, is placed on two sides of a table. A point object P is kept at a distance of mr, from it. If the value of m for which ray will emerge parallel, the ray will emerge parallel is x by 3. Find x. Find x. अब देखो फिगर समझा दो बेटा. ये दो क्वार्टर सिलेंडर है, एक क्वार्टर सिलेंडर. ये क्वार्टर सिलेंडर ग्लास के बने हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu is 1.5 for both of these sections. Distance of a point object P which is placed over here is mr. इसका डिस्टेंस जो है mr है. And ये क्या कह रहा है? It is saying that find the value of x. Find the value of x or find the value of distance m for which the ray will emerge parallel. For which the ray will emerge parallel. मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा, इधर यहाँ से कोई ray of light जाती है ये, ठीक है ना? ये जाएगी तो यहाँ से, but of course it will bend towards the normal. ये कुछ इस टाइप से जाएगी और जो फाइनल इमर्जेंस होगा इट इज पैरेलल.
फाइनल में इमर्जेंस है वो कैसा है, पैरेलल पैरेलल, ठीक है। ये इधर से ये ऐसे आई तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट गोस पैरेलल, ये सिस्टम कहना है, ठीक है। नाउ फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पहले तो तुम ये समझो कि जो पहला सरफेस है, पहला सरफेस वो प्लेन है, वो पहला है प्लेन। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस आइदर यू यूज स्नेल्स लॉ, आइदर यू यूज स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। दूसरा एक और काम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, देखो refractive index of medium to refractive index of air is equals to velocity of light in medium to velocity of light in air। velocity को अगर ब्रेक कर दो तो distance of that point in medium upon time, velocity is equal to distance upon time is equals to velocity of light in air to distance of the body in air upon time, or I can say distance in that medium to distance in air। कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं भाई, सेम एक्सप्रेशन है, इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पे है, बट जब प्लेन सरफेस से देखा जाएगा, इसके इधर से देखा जाएगा तो भैया ये यहां तो अपीयर नहीं होगा ना, ये यहां तो नहीं अपीयर होगा। ध्यान से समझना बात को, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट दैट फॉर द फर्स्ट सरफेस इफ यू विल व्यू फ्रॉम हियर, इफ यू विल व्यू फ्रॉम हियर दैट मींस आप कहां पे, आप डेंसर में, आप कहां पे, डेंसर में। तो डेंसर से जब किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे रेयरर में, डेंसर से देख रहे हो रेयरर में, तो वो इधर शिफ्ट होगा, उसकी शिफ्ट किधर होगी, इधर आई से राइट या लेफ्ट। अब ये तुमसे पूछना है क्योंकि इसके पहले भी अभी मैं रिपीट कर चुका हूं। डेंसर से पहला सरफेस यहां पे, तुम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो वहां से ये पॉइंट पी किधर दिखेगा, इधर दिखेगा कि इधर दिखेगा, मतलब राइट दिखेगा या लेफ्ट दिखेगा, राइट दिखेगा कि लेफ्ट दिखेगा, फिर से सोच के बताओ। ऑब्जर्वर कहां है, अंदर बैठ गया, ऑब्जर्वर अज्यूम करो अंदर बैठा है, मतलब डेंसर में। तो जब डेंसर से रेयरर देखेगा तो मेरा ये, मेरे लिए ये पॉइंट पी का राइट है और मेरे लिए पॉइंट पी का ये लेफ्ट है। तो आप बताओ आर में कि एल में। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आर्मी इज राइट, बट एनीवेज ये किधर शिफ्ट होगा, मे बी कि आपने अपनी ओर से कहा हो कि आपके राइट में, ठीक है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों, क्योंकि दूर हो जाएगा, क्योंकि दूर हो जाएगा, क्योंकि दूर हो जाएगा। तो भैया पता लगाए कहां होगा, कहां होगा, तो ये लो एक्सप्रेशन आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो म्यू एम अपॉन म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू एम, म्यू ले लेते हैं, अपॉन म्यू ए है 1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ मीडियम, वही पता करना है, अपॉन डिस्टेंस इन एयर, डिस्टेंस इन एयर ऑब्जेक्ट का कितना है, एम आर, कितना है, एम आर। तो बेटा डिस्टेंस इन मीडियम कितना आ गया, व्हेन व्यूड फ्रॉम द मीडियम कितना आ जाएगा, म्यू एम आर, कितना आ जाएगा, म्यू एम आर। दैट मींस फॉर द रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, वो यहां कहीं बनेगी एट p dash which would be at a distance of how much, mu m r। भाई यहां तक बात क्लियर है, तभी आगे बढ़ेंगे। यहां तक बात क्लियर है, यस प्लीज, हरी अप, यस प्लीज, यहां तक बात क्लियर है। और म्यू की वैल्यू है 1.5, चाहो तो प्लेस कर सकते हो, चाहो तो प्लेस कर सकते हो, यहां पे 1.5 करके भी सॉल्व कर सकते हो, या बाद में कुछ कर लेना जहां चाहे। यहां तक क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल अप टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्लियर है, अच्छी बात है। अगर ये क्लियर है तो अपना खेल खत्म ही हो गया यार, अब तो सारा का सारा प्रॉब्लम हो ही गया है सॉल्व। क्या सॉल्व हो गया देख लो, बड़ा सिंपल है। अब जब यहां तक हो गया है तो नाउ द सेकंड सरफेस इज द कर्व सरफेस, सो आई जस्ट नीड टू अप्लाई रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस। मतलब अब मैं क्या लगा दूंगा, सिंपल सा फिनोमेना दैट इज mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r, mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r। वैल्यू पुट करने के पहले एक चीज सोच लो, द रेज आर इमर्जिंग पैरेलल, दैट मींस इमेजेस formed at infinity, बराबर, दैट मींस इमेजेस formed at infinity। इफ द इमेजेस formed at infinity तो इसको तो कर दो जैसे भी ना, हटा दो, क्या बचा अपने पास, minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r। तो जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं, तो आएगा minus mu1, mu1 कितना है, what should I take mu1 over here, what should I take mu1 over here, I take for class, तो minus 1.5
बराबर, अपॉन यू, यू कितना हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा, तो नेगेटिव ही रहता है, तो माइनस ऑफ कितना है माइनस म्यू एम आर, यही है ना। ओके, जल्दी से एक चीज बता दो, आई थिंक द नेक्स्ट टीचर इज वेटिंग फॉर हिज क्लास, व्हाट शुड बी द यू, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, जल्दी बताओ, लवकर करा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ओवर हियर, बिकॉज़ देखो ये चीजें समझ में आ जाएगी, मगर छोटी छोटी चीजें ऐसी जहां पे गड़बड़ हो सकती है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ओवर हियर, क्विक जल्दी करो, क्विक जल्दी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ओवर हियर, वेरी गुड वेदांत, इट शुड बी आर प्लस म्यू एम आर। प्रियांशु बेटा माइनस क्यों कर रहे हो तुम म्यू एम आर माइनस एम आर को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाबू कहां से लोगे तुम, ये कर्व सरफेस से लोगे ना। प्रियांशु अंडरस्टैंड, रुद्राक्ष एंड प्रियांशु अंडरस्टैंड बेटा, कहां से कहां लोगे, यहां कर्व सरफेस से लोगे ना, तो कर्व सरफेस से टोटल डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस म्यू एम आर, वो तो पूरे में माइनस लगेगा, दैट इज वेदांत हैज गिवन करेक्ट, आर कर्व सरफेस से लेंगे ना बेटा, तो r प्लस म्यू एम आर, और वो पूरा माइनस में रहेगा। अर्निश अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अभी नया वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, p डैश, तो टोटल डिस्टेंस कर्व सरफेस से कितनी होगी, म्यू एम आर, r प्लस म्यू एम आर, ओके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहां पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, दैट इज r प्लस म्यू एम आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, तो म्यू टू कितना है, 1 है, माइनस म्यू वन कितना है, 1.5 होल अपॉन आर कितना होगा, अब ये कर्वेचर देख लो, कर्वेचर ऐसे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, दैट मींस आर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये हो गया माइनस आर, ओके, तो नाउ यू हैव माइनस, तो ये माइनस माइनस हटा दें, तो 1.5 डिवाइडेड बाय आर प्लस म्यू एम आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 0.5 अपॉन माइनस आर, ये भी माइनस हट जाएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट भी हटा सकते हैं, इधर भी डिवाइडेड बाय 10, इधर भी डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो ये हो गया 5 1 जा 5 3 जा 15, तो 3 इज इक्वल्स टू r प्लस म्यू एम आर होल अपॉन r, ऊपर से r कॉमन ले लो, तो 3 इज इक्वल्स टू r कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस म्यू एम अपॉन r, ठीक है, r भी हो गया, तो 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू कितना है 1.5 m, ये इधर आ गया, तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 1.5 m, तो बेटा m कितना आ गया, m इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1.5, यस, ये हो गया 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, so therefore m is equals to 4 by 3, m is equals to 4 by 3, पर अपने को m नहीं चाहिए, वेरी गुड आदिश, वेरी गुड बेटा, पर अपने को m नहीं चाहिए, अपने को x चाहिए, अपने को क्या चाहिए, x चाहिए, तो as m is equals to 4 by 3, तो वैल्यू यहां प्लेस कर दो, m को 4 by 3, तो 4 by 3 is equals to x by 3, बराबर 3 3 हो गया, so therefore I get x is equals to 4, correct answer. Is this question very much clear? समझ में आ गया सबको? I hope today's lecture was quite interesting and you must have enjoyed the class with n number of different problems, जिसमें अलग-अलग तरीके, अलग-अलग चीजें involved थी. So I think this concepts and procedure was clear today. Okay, so I'll end my lecture over here. Enjoy your day. Have a nice day. Stay safe, stay home. And always at the last, Bharat Mata ki Jai. Thank you.